So we have our discussion on how to attempt questions in philosophy paper. I hope you people are here and try to understand that how we can be good writers in examination hall for maximum marks. So today I will be giving you briefly some important tips so that you are able to attempt the philosophy paper and you get more marks. If I'm visible and audible, so please like this video broadcast and share the link of this video broadcast and save online, save WhatsApp groups and save too. Now, I would like to see someone to copy paste the questions of philosophy from 2018. 2018. One of the trend, please write it as a comment. One of the trend in philosophy CSS paper especially, that 1 year paper is difficult, the second year paper that is a little complicated. So they cover the syllabus, 1 year half questions from the syllabus, next year the same the remaining questions they ask in the next year, because syllabus is very limited. That's why questions are often repeated. So can you please copy paste philosophy 2018 question paper, so we make it more practical, that how can we write answers to some of the questions. I need a comment. Copy paste the topic and then copy paste the 2018 CSS philosophy paper. So we see the questions and then I tell you how can you answer these questions to get maximum marks. So can you copy paste 2018 philosophy paper? If you cannot copy paste, so share the image or type quickly the first question at least, so we can start our class. I don't see your comments so far. Copy paste the topic and then copy paste 2018 CSS paper. I'm not receiving your comments. Let me refresh my device. If you can't find the paper, so write I cannot find the paper. I think the first question in 2018 is that what is philosophy and what are its branches? What is philosophy and what are its branches? Yeah, now I got the link, the first comment from Imran Khan. Define philosophy and explain its main branches. This is question number 1 from CSS 2018 philosophy paper. That's a very simple question. What is philosophy and what are its branches? This is the first question in 2018 CSS paper. Now, the building where from you start your answer, that is the definition and basic description. Please write it. I start my question from the definition, and every question, not only this question, every question you can start from
definition and basic. Yeah, this is question number 2. Discuss key points of Popper's fallibilism. So let us go to the first question. And the first question is, now Imran Khan has given us the whole paper. Define philosophy. Question number 2. Explain its main branches. Question number, discuss key points of Popper's fallibilism. Discuss Berkeley's critique of Locke's representative realism. Critically evaluate Rawls' notion of original position. Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Rushd. Write short notes on any two of the following. So, the first point is definition and basic description. Where from we start preparation and answering definition and basic description? From the Wikipedia, please write it. Wikipedia introductory paragraphs before the contents. Before the contents. I used to consult Webster Dictionary. I have done almost all my answers from Webster Dictionary. But now Wikipedia is available in a more comprehensive way. So you can use both Webster Dictionary and Wikipedia. Can anybody copy paste Wikipedia, the topic of philosophy before contents? And that is the answer to this question. What is philosophy and what are the branches of philosophy? So this is very important for everybody who wants to become a CSP or a PMS officer, to learn by heart the introductory paragraphs of Wikipedia of every syllabus topic before the table of contents. Learn by heart doesn't mean that you will be reproducing, writing exactly what is in the Wikipedia, but you have to see that from here you have to take the start. Where from to take the start? So we take start from the Wikipedia introductory paragraphs before the table of contents. So philosophy, write in Google philosophy Wikipedia. So Khan ka Nazara, how you will write this answer to this question? When you start your question, so you have to change a little, not exactly what Wikipedia tells us, but you will write in the paper that philosophy is derived. Philosophy is derived from two Greek words, philos and sophia, etymology. So you add, because I have discussed this question in this classroom. Please explore this classroom from top to bottom. I have given you some original touches. Philosophy is derived from two Greek words, philos and sophia. Philos means love, sophia means wisdom. So, philosophy etymologically means the love of wisdom. Full stop.
This is one sentence. Second, philosophy is the study of general and fundamental questions such as those about reason, existence, knowledge, values, mind, and language. How you will write this in paper? You may reverse the order or you may change the order, but you must understand that these are the, for example, you can write basic for fundamental, concerned with the basic nature of existence and reality. So I am making it clear to you that how you can write this answer to the question. About reason, existence, knowledge, values, mind, language. तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि भाई फिलॉसफी के अंदर क्या क्या चीजें हैं. फिलॉसफी के अंदर जो है रीजन है, अकल, इंटेलेक्ट, माइंड, रीजन, रैशनैलिटी. एग्जिस्टेंस है या रियलिटी. नॉलेज है, एपिस्टेमोलॉजी. वैल्यूज, एथिक्स. माइंड, द फिलॉसफी ऑफ माइंड. लैंग्वेज, द फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज. ये फिलॉसफी की टॉपिक्स है, स्कोप है फिलॉसफी का कि भाई रीजन जो है, रैशनैलिटी, ये क्या है, कौन सी चीज एग्जिस्ट करती है, कौन सी चीज एग्जिस्ट नहीं करती. नॉलेज क्या है, वैल्यूज क्या है, माइंड क्या है, लैंग्वेज क्या है. तो इसमें आप मतलब अगर आपको रटा नहीं लगता आपसे तो कम से कम ये याद रखिए कि फिलॉसफी डील्स विद वैल्यूज, नॉलेज, रीजन, एग्जिस्टेंस, लैंग्वेज, माइंड. तो जरूरी नहीं कि उसी ऑर्डर में आप उसको याद रखें. उसके बाद आपका क्या होगा कि सच क्वेश्चंस आर ऑफन पोज्ड एज प्रॉब्लम्स टू बी स्टडीड और रिजॉल्व्ड. अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि फिलॉसफी डील्स विद सम प्रॉब्लम्स and their solutions. Full stop. अच्छा, थोड़ा सा आप हिस्ट्री में जा सकते हैं कि where from the philosophy, who was the first person who used the term of philosophy. So Pythagoras, and it can help you in MCQs also. How we do philosophy, what are the philosophical methods. तो अगर आपको ये याद नहीं है, questioning, critical discussion, rational argument, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, तो आप वो सिदफ वाला फार्मूला याद रखिए. एनीबॉडी रिमेंबर द सिदफ फार्मूला? SIDDF. SIDDF. सो सोक्रेटिक मेथड विच इज क्वेश्चनिंग. अब ये जो है ना, इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चनिंग, लेकिन उसको टेक्निकल आप क्या कहते हैं, सोक्रेटिक मेथड. Critical discussion, it can be dialectical method. Rational argument, that is also dialectical method. So SIDF, SIDDF, please write it. SIDF, Socratic method, deductive method, inductive method, dialectical method, and fallibilistic मेथड. अभी जो CSS का सिलेबस है तो उसका जो पहला पार्ट है लॉजिक और फिलोसॉफिकल मेथड्स, तो उससे मैंने बनाया है सिदफ, SIDDF. सोक्रेटिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव, डायलेक्टिकल, fallibilistic. Historically, philosophy encompassed all bodies of knowledge, and a practitioner was known as a philosopher. From the time of ancient Greek philosopher Aristotle to the 19th century, natural philosophy encompassed astronomy, medicine, and physics. 19th century तक कोई और knowledge नहीं था, that was just philosophy.
19th सेंचुरी के बाद जब इनलाइटनमेंट रेनेसांस आ गया, निशात सानी आ गया यूरोप में, तो स्पेशलाइजेशन शुरू हो गई। उससे पहले सिर्फ फिलासफी थी, कोई और चीज थी ही नहीं, या रिलीजन था। लेकिन रिलीजन चूंकि इंसानी इल्म नहीं है, वो तो खुदा की तरफ से आता है, तो उसको हम एक और कैटेगरी में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड ecclesiastical studies. There are two types of studies, ecclesiastical studies and humanities. Humanities from the human mind, human brain. इंसान जो अपने दिमाग से चीजें बनाता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटीज। डिवाइन जो होता है, जो ऊपर से आती है आसमान से, तो उसको क्या कहते हैं? रिलीजन। एक्लेसियास्टिकल, उसके लिए टेक्निकल टर्म क्या है? एक्लेसियास्टिकल, ECCLESTICAL, एक्लेसियास्टिकल। तो ये नॉलेज के दो बड़े ब्रांचेस थे, एक्लेसियास्टिकल और ह्यूमैनिटीज। जो इंसान खुद बनाता है दैट इज ह्यूमैनिटीज। जो डिवाइन, वही कुरान, हदीस, बाइबल, तौरात, जबूर वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो क्या है? एक्लेसियास्टिकल है। अब न्यूटन ने जो पहली किताब लिखी है दैट इज मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। तो न्यूटन खुद एक फिलासफर था, लेकिन जब स्पेशलाइजेशन हो गया, अब अरिस्टोटल ने फिजिक्स पे भी किताब लिखी थी, मीटाफिजिक्स पे लिखी थी। फिजिक्स ने अलहदा रास्ता इख्तियार किया, फिजिक्स जो है वो साइंस बन गया, मीटाफिजिक्स जो है वो फिलॉसफी में रह गया। तो ये जो आपका पैराग्राफ है, इस इधर से आपने स्टार्ट लेना है। यू हैव टू टेक स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ। दैट इज योर व्हाट इज फिलॉसफी, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी के ब्रांचेस क्या है? अब इंटेलिजेंट बंदा जो है वो फिलॉसफी के सिलेबस को याद रखेगा। फिलॉसफी के सिलेबस में पहला ब्रांच क्या है? लॉजिक। सेकंड ब्रांच क्या है? प्लीज राइट इट इन द CSS फिलॉसफी। द फर्स्ट ब्रांच इज नंबर 1। कैन यू कॉपी पेस्ट द फिलॉसफी सिलेबस? सो दैट इज ब्रांच वाइज, वो ब्रांच वाइज है। जो आपका सिलेबस है वो ब्रांच वाइज है। नंबर 1 लॉजिक। जो PMS है उसमें लॉजिक अलहदा ब्रांच है। तो एग्जाम के लिए पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। फिर आपके पास लैंग्वेज, लैंग्वेज का स्टार्ट आपने कहां से लेना है? विकिपीडिया से और इसी ग्रुप से। इसके अलावा आपके पास कोई किताब भी होगी, जहांगीर वर्ल्ड पब्लिशर्स की फिलॉसफी की किताब है, ब्रटन रसल की किताब है, ठीक है। तो फिलॉसफी की तो 1000 किताबें हैं। अब मैंने इस ग्रुप में आपको 5-6 किताबें सजेस्ट की है कि कौन सी किताबें आपने पढ़नी है। तो ये जो राशिद अनवर ने हमें सिलेबस दिया, इंट्रोडक्शन तो आ गया, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी, ये पहला पार्ट है। नंबर 2 जो सेक्शन है फिलोसॉफिकल मेथड्स, ये बेसिकली लॉजिक है, और इसमें आपके पास सॉक्रेटिस है, बेकन है, मिल है, अरिस्टोटल है, डिकॉट है, डायलेक्टिकल मेथड है, हीगल है, फालिबिलिस्टिक मेथड। अब देखो, जो 2018 का CSS का पेपर है, इसमें से पहला क्वेश्चन सेक्शन नंबर 1 से है, इंट्रोडक्शन। दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 से क्या है? फालिबिलिस्टिक मेथड। फालिबिलिस्टिक मेथड जो है वो पापर का है कि क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 3 है, वो ब्रांच है फिलॉसफी का एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी के अंदर 4 अप्रोचेस है, 4 फिलॉसफीज है, रैशनलिज्म, एम्पेरिसिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म, इंट्यूशनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं? रेटी, RETI। सेक्शन नंबर 4 जो है वो अंटोलॉजी है, और ये क्या है? इरम, आइडियलिज्म, रियलिज्म, मटेरियलिज्म। तो एक फिलॉसफी का ब्रांच आ गया अंटोलॉजी। नेक्स्ट जो है वो एथिक्स है, सारा फिर नीचे पूरा एथिक्स पे है। तो सिलेबस से आपको पता चलता है कि भाई फिलॉसफी क्या है और फिलॉसफी के ब्रांचेस क्या है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉपर फालिबिलिस्टिक मेथड।
तो आपने कहां से स्टार्ट लेना है? विकिपीडिया से स्टार्ट लेना है। फिर इस ग्रुप में आना है और आपने सर्च, इस ग्रुप में एक सर्च बटन होता है, तो सर्च बटन में लिखो पापर, तो पापर पे आपको चीजें मिलेंगी। फालिबिलिज्म लिखो, फालिबिलिज्म पे आपकी चीजें मिलेंगी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है? आपको फिलॉसफी क्लियर हो गई कि फिलॉसफी क्या है, उसके ब्रांचेस क्या है, और लैंग्वेज भी आपको विकिपीडिया से मिल गया। तो नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2018 के पेपर में, वो फालिबिलिज्म पे है। फालिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एवरीथिंग इज फालिबल, हर चीज गिर सकती है। देयर इज नथिंग इनफॉलिबल, कोई भी चीज जो है वो मासूम नहीं है। अब रिलीजन में जो है पैगंबर जो है वो मासूम है, पैगंबर जो है वो गुनाह नहीं करता, या खुदा जो है वो गुनाह नहीं करता, मासूम है, वो फालिबल नहीं है। अगर पैगंबर गलती करता है तो फिर हमें क्या पता चलेगा कि उसकी गलती वाली बात है या बगैर गलती वाली बात है। तो इस वजह से रिलीजन ने इस चीज को क्लोज किया है कि देयर इज नो फालिबिलिज्म, रिलीजन में फालिबिलिज्म नहीं है। लेकिन फिलॉसफी में फालिबिलिज्म है। फाल का मतलब है गिरना, इनफॉलिबल का मतलब है न गिरना। तो इसका दूसरा नाम क्या है? फाल्सिफिकेशनिज्म। फालिबिलिज्म का दूसरा नाम क्या है? फाल्सिफिकेशनिज्म, कि वी कैन फाल्सिफाई एवरीथिंग, कोई भी चीज जो है अब उसको झूठा साबित कर सकते हैं। साइंस का काम यह है कि उस चीज को ट्रू साबित करे। मैं कहता हूं कि आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी फॉल्स है, गलत है, तो साइंस इसमें लगा रहेगा कि उसको वेरीफाई करे, उसको ट्रू साबित करे। तो इसी से ह्यूमन जो थिंकिंग है या ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है वो बढ़ जाता है। ये फालिबिलिज्म है। अगर आप एक चीज को एब्सोल्यूट मांगते हैं कि नहीं जी मुतलकन ये ठीक है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप आगे मजीद नहीं जाते। अब बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि भाई कुरान हदीस हमारे लिए काफ़ी है, हम मजीद कोई इल्म हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ कुरान और हदीस में मौजूद है। इस वजह से मुसलमानों में न फिलासफर है ना मुसलमानों में साइंटिस्ट है। रीज़न क्या है? कि उसमें फालिबिलिज्म नहीं है। अब जो शीया मुसलमान है वो फिर इमाम को, जो इस्ना आशरी है, जो 12 इमाम वाले है, तो वो कहते हैं कि पैगंबर भी मासूम है और साथ ये जो 12 इमाम है ये भी मासूम है, इनसे भी गलती नहीं होती। अगर इमाम हुसैन है, इमाम हसन है, इमाम जाफर सादिक है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जितने भी इमाम है वो भी गलती से मुबर्रा है। अब यही चीज जो है वो फिलॉसफी में फालिबिलिज्म है। सो एनीबॉडी कैन गो क्विकली टू, अब यहां आपने क्या करना है? विकिपीडिया में जाना है, कार्ल पॉपर का इंट्रोडक्शन यहां कॉपी पेस्ट करना है, उधर से आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। कार्ल पॉपर जो फालिबिलिज्म का फाउंडर है। सेकंड आपने जाना है विकिपीडिया में फालिबिलिज्म पे, कि व्हाट इज फालिबिलिज्म, फालिबिलिस्टिक अप्रोच। तो ये दो आपको लैंग्वेज मिल गई, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई फालिबिलिज्म क्या है, इंडक्टिव क्या है, डिडक्टिव क्या है, सोक्रेटिक क्या है, रेशनलिज्म क्या है, एम्पेरिसिज्म क्या है। तो ये आपके सामने पेपर्स है, पास पेपर्स है, उसको आप सॉल्व करना शुरू करें, एंड दिस वे यू गेट मैक्सिमम मार्क्स। If there is any quick question, so please let me know. Otherwise, I am going to save PMS classroom. Sunny Prince, broadly speaking, fallibilism from medieval Latin fallibilis, liable to err. Liable to err, गलती की गुंजाइश है, is the philosophical claim that no belief can have justification which guarantees the truth of the belief
तो ये फालिबिलिज्म का आ गया लैंग्वेज आपके पास। और फिर खान का नज़ारा ने आपको दिया है पॉपर का इंट्रोडक्शन। ऑस्ट्रियन ब्रिटिश फिलासफर है, और ये उसका इंट्रोडक्शन है। आपके पास बेसिक लैंग्वेज आ गया। वन ऑफ द 20th century's most influential philosophers of science, Popper is known for his rejection of classical inductivist views। ऊपर से जो हमने इंडक्टिव पढ़ा है, कार्ल पॉपर ने इंडक्टिव को रिजेक्ट कर दिया, साइंटिफिक मेथड इन फेवर ऑफ एम्पेरिकल फाल्सिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू पॉपर, a theory in the empirical sciences, empirical means practical, sciences can never be proven, but it can be falsified, meaning that it can and should be scrutinized with decisive experiments। पॉपर कहता है कि भाई आप हर चीज को झूठा कहोगे, झूठा है, फिर आप इस पर डिसाइसिव एक्सपेरिमेंट्स करोगे। सर कैन वी फॉलो द सेम पैटर्न फॉर पी? यस। क्या है इसमें? पीएमएस और सीएसएस में कोई फर्क नहीं है। मैंने उस दिन आपको क्लास में सुना, आपको प्लीज मेरे वो वाला क्लास दोबारा सुने। पीएमएस और सीएसएस में कोई फर्क नहीं है। पीएमएस में जो फिलॉसफी कोर्स का सेक्शन 2 है, उसको उन्होंने पूरा पेपर बना दिया, बस। बाकी बिल्कुल एक चीज है। और पीएमएस में 2 फिलॉसफी ज्यादा है, पॉजिटिविज्म एंड वाइटलिज्म। पॉजिटिविज्म और वाइटलिज्म जो है वो सीएसएस में नहीं है। लॉजिक जो है पूरा पेपर है। बाकी एग्जैक्टली पीएमएस और सीएसएस में कोई फर्क नहीं है। So I hope you got the message. Now see you in safe PMS classroom.